Take question number 14, 1 4. Okay, before we start with question number 14, last time we had discussed this very important point, how to calculate cost per unit. So, how to calculate cost per unit? Very simple. Numerator में क्या आना चाहिए? What should come in the numerator? Numerator में very simple. You can say total purchase cost. फिलहाल के लिए you can forget about scrap value etc. because we have two questions and दोनों question में वो scrap value का point नहीं है. But when we after results start one chapter called as process costing, ये point पे हम फिर से discussion करेंगे. That is calculation of cost per unit. For the time being, what you can remember कि cost per unit calculate करने के लिए you should divide by which quantity? Yes, you should divide by which quantity? Expected quantity, not the actual quantity. ठीक है. With this background, we will take two questions. That is question 14, 15. Then we will go to something which is very much known to you. That is preparing something called as Store's ledger. Store's ledger में you used to follow FIFO, weighted average वाला. So that we will follow. Okay. Take question number 14. An invoice in respect of consignment of chemicals A and B provides the following information. Chemical A 10,000 kgs at 10 rupees per kg, 1 lakh. Chemical B 8,000 kgs at 13 rupees per kg, 1,04,000. Basic custom duty at the rate of 10%, credit not allowed. And railway freight 3840. Total cost is 2,28,240. A shortage of 500 kgs in chemical A and 320 kgs in chemical B is noticed due to normal breakages. You are required to determine the rate per kg of each chemical, assuming a provision for or of 2% for further deterioration. ठीक है. First, see, normally मैं पहले क्वांटिटी का डिस्कशन करता हूँ, बाद में हम लोग अमाउंट का डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट फोकस ऑन क्वांटिटी. हाउ मेनी केजीज ऑफ केमिकल ए वर परचेस्ड? 10,000 kgs. How many kgs of chemical B are purchased? 8,000. So यहाँ पे दो केमिकल के बारे में वो लोग ने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. That is chemical A and chemical B. 10,000 kgs of chemical A and 8,000 kgs of chemical B. We can call this 10,000 and 8,000 as which quantity? Purchase quantity. Okay. Did we get the entire quantity? No. क्योंकि वो लोग ने बोला है there is something called as shortage. और ये जो shortage है is due to which reason? Normal breakages. मतलब this is which loss? Normal loss. It is bound to happen. तो इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? Shortage. Of course, this shortage is due to which reason? Normal breakages. Okay, how many kgs is normal breakages in chemical A? 500 and chemical B 320. मतलब ये units तो हम लोग या kgs use ही नहीं कर पाएंगे. Okay, let us subtract this. 9,500 and 7680. Okay. Wait, read the question and tell me, क्या हम ये क्वांटिटी को यूज कर पाएंगे क्या? Will you be able to consume this quantity? No. Why no? Because nature of raw material chemically ऐसा है कि there will be something called as what? Further deterioration. I hope you understand what is meaning of further deterioration. मतलब ये और आगे खराब होगा ऐसा हमको लग रहा है.
तो ये 2% है, तो दिस इज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड, दैट इज वाई तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन। सो दिस इज ऑल्सो विच टाइप ऑफ लॉस, नॉर्मल, इट इज एक्सपेक्टेड होगा। तो इसमें से हम 2% किसका निकालेंगे, ये 2% किसका निकालने का, 10,000 का निकालेंगे कि 9,500। तो हम लोग इसमें हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं, या यू विल जस्ट हैव टू मेक सम प्रोविजन फॉर व्हाट, फर्दर डिट्रियोरेशन। मतलब दिस इज एक्सपेक्टेड, ये होने वाला है, हमको पता है कि केमिकल का नेचर ही ऐसा है। चलो कैलकुलेट करो, 9,500 का 1 एंड डेसिमल्स में आएगा, कीप इट इन डेसिमल्स, 153.6। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ये माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी हमको मिलेगा, दैट इज विच क्वांटिटी, 9310 एंड 7526.40, ये हमारा फाइनली विच क्वांटिटी हो गया। नो, दिस इज कॉल्ड एज विच क्वांटिटी, एक्सपेक्टेड ना, जो हम लोग इफेक्टिवली ये क्वांटिटी यूज कर पाएंगे, इफेक्टिवली तुम ये क्वांटिटी यूज कर पाएंगे ऐसा हमको लग रहा है। अभी एक्चुअल कितना हो सकता है वो हमको नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो क्या अज्यूम करेंगे ऑब्वियसली कि एक्चुअल भी इतना ही रहेगा, बिकॉज एक्चुअल वो लोग को वैसे भी हमको नहीं दिया, क्योंकि रेट पर केजी कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा क्वांटिटी यूज करेंगे, एक्चुअल के एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड, चलो राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। calculation of calculation of effective quantity, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हो एक्सपेक्टेड क्वांटिटी। okay, prepare this table। Okay, so let us continue। कहाँ गए? Yes, did you copy this? Just इसके हेडिंग में एक्चुअली मेंशन करना चाहिए था in kgs, you forgot that। This is our point number 1। चलो write down further point number 2
Those who have not written, फटाफट लिखो. Point number 2, calculation of total purchase cost. बोलो टोटल परचेज कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा? वेरी सिंपल. व्हाट इज दिस 1 lakh and 1,04,000 respectively? Purchase price. Okay, they have already given purchase price. केमिकल ए का परचेज प्राइस कितना है? अरे टोटल चाहिए ना हम लोग को, पर केजी थोड़ी. अरे यहाँ पे हमने हेडिंग में क्या लिखा है? क्या कैलकुलेट कर रहे हो? टोटल परचेज कॉस्ट ना, पर केजी तो बाद में कन्वर्ट करेंगे हम लोग. तो टोटल परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले केमिकल ए का इट इज 1 लाख, बी का कितना है? 1,04,000. और कुछ है जो टोटल परचेज कॉस्ट में आएगा? व्हाट इज दैट? बेसिक कस्टम ड्यूटी. सो नेक्स्ट लाइन यू कैन राइट डाउन बेसिक कस्टम ड्यूटी. बेसिक कस्टम ड्यूटी को हम ऐड करेंगे ऑफ कोर्स. जस्ट इफ यू वांट यू कैन राइट ऐड. इसका आईटीसी अलाउड नहीं है कस्टम ड्यूटी का. दैट इज दैट, मतलब कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया एक. तो दिस टैक्स शुड बी टेकन के नॉट टेकन? व्हाट इज द रूल दैट वी फॉलो? अगर उसका हमको क्या मिल रहा है? टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, तो हम उसको कॉस्ट नहीं कंसिडर करेंगे. इट इज 10% ऑफ व्हाट? किसका 10% लेने का? परचेज प्राइस का. ऑफ कोर्स राइट डाउन 10% ऑफ परचेज प्राइस. तो ए का कितना हो गया? 10,000. बी का कितना हो गया? 10,000. ये दोनों का टोटल कितना जो क्वेश्चन में दिया है? 2,400. यस. नाउ नेक्स्ट दिया रेलवे फ्रेट. रेलवे फ्रेट 3840 कौन से केमिकल का है? तो ये रेलवे फ्रेट को हम लोग कैसे बाइफरकेट करेंगे? रेलवे फ्रेट को हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट? We will not use the word distribute in this subject. Very frequently you will use the word apportion. हमको क्या करना है? apportion का मतलब क्या है? distribute. तो ये 3840 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का? दो ही ऑप्शन है. शुड आई डू इट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू और शुड आई डू इट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल का वेट? वेट मतलब केजीज. तो केजीज के बेसिस पे करने का कि वैल्यू के बेसिस पे करने का? वैल्यू इज रॉन्ग. इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू. रेलवे वाला तुमको वैल्यू के बेसिस पे थोड़ी फ्रेट चार्ज करेगा, वो लोग तो वेट के बेसिस पे करेगा. लेकिन अगर ये इंश्योरेंस होता तो इंश्योरेंस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, क्योंकि इंश्योरेंस को वेट से लेना का नहीं है, वो लोग वैल्यू के बेसिस पे करेंगे. सो 3840 विल बी इन व्हाट रेशियो? इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी. What is the ratio of quantity? Yes, that is 5:4. You can also use 10:8. चलो bifurcate करो. I think it will be in decimals. 2133. Oh, ठीक है. You can round off 2133 and 1707. ओके, इसको टोटल कर दो. $1,12,133
1,16,107. इसके सामने यू कैन राइट टोटल परचेज कॉस्ट. सपोज फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में तुम लोग को नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू दिया होता. सपोज बोलेंगे कि नॉर्मल ब्रेकेजेस है ना, ये नॉर्मल ब्रेकेजेस को हमने स्क्रैप कर दिया 2 रुपए में, तो दैट इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ विच लॉस, नॉर्मल लॉस. उसको यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, लेस, क्योंकि एज गुड एज उतना तुमको रिफंड मिल गया तो उतने से तुम्हारा कॉस्ट कम हो गया. लेकिन कौन से स्क्रैप वैल्यू को यहाँ पे तुम माइनस नहीं कर सकते, एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू को यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंसिडर scrap value of abnormal loss while calculating rate per kg, rate या cost per kg. चलो, that is our point number 3, rate per kg. Of course there are two chemicals, तो हम लोग अलग से करेंगे. First is chemical A and then chemical B. केमिकल ए का न्यूमरेटर हो जाएगा 1,12,133. दिस विल बी डिवाइडेड बाय विच क्वांटिटी. ने कितना है वो मत बताओ, लॉजिकली बताओ. एक्सपेक्टेड क्वांटिटी, विच इज द एक्सपेक्टेड क्वांटिटी, 9310 kgs. $12.044 समथिंग. ठीक है, तो 0.42 kgs, 2 डेसिमल्स पे राउंड ऑफ कर सकते हो. एंड सेकेंड वन 1,16,107 डिवाइडेड बाय 7,526.4 kgs, 15.43 kg per kg. So that was simple question. This is from study material. इसके ऊपर और एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ना न्यूमरेटर पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे. न्यूमरेटर में क्या होता है, कॉस्ट पर केजी कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर में हम लोग क्या लेंगे, टोटल परचेज कॉस्ट. उसके ऊपर डिस्कशन इसमें होता है. स्काई एंड कंपनी अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी. अब ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी का मतलब क्या है, वो जब तुम्हारा जीएसटी चालू होगा तो तुमको समझ में आएगा. अनरजिस्टर्ड सप्लायर मतलब उसने अपना को जीएसटी का अंडर रजिस्टर नहीं करवाया. परचेस्ड मटेरियल फ्रॉम वाई लिमिटेड विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन लॉट ऑफ 5,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल परचेस्ड. वन लॉट ऑफ 5,000 यूनिट्स. List price or listed price of one lot, that is 2,50,000. What is listed price? Listed price, market price, MRP of goods. MRP कितना है, 2,50,000. लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है उसके ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली ऑलवेज ऑन विच प्राइस, लिस्टेड प्राइस. 10% ऑन लिस्टेड प्राइस. ठीक है. CGST एंड SGST, क्रेडिट नॉट अवेलेबल. क्रेडिट नॉट अवेलेबल हो सकता है बिकॉज वी आर अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ना, तो हम लोग को क्रेडिट नहीं मिलेगा. CGST एंड SGST क्रेडिट नॉट अवेलेबल. 18%, 9%, 9%. आई होप ये CGST SGST का फुल फॉर्म तुमको पता है. ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये है, विल दिस बिकम अवर कॉस्ट, वाई, क्रेडिट नॉट अवेलेबल. कैश डिस्काउंट 10% विल बी गिवन ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 days. Toll tax paid 5,000, freight and insurance 17,000, demurrage paid to transporter 5,000, commission and brokerage on purchase 10,000, amount deposited for returnable containers 30,000, amount refunded on
Returning the containers 20,000. Other expenses 2% of total cost. 20% of material shortage is due to normal reason. Payment to the supplier was made within 21 days of purchases. Why this information is given to us? For cash discount calculation. क्योंकि वो लोग ने बोला cash discount will be given if the payment is made within 30 days और हमने तो 21 days में ही पेमेंट कर दिया. ठीक है. You are required to calculate cost per unit of material purchased. Cost per unit of material के लिए एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा. न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल कॉस्ट हम लोग बोल सकते हैं. डिवाइडेड बाय विच क्वांटिटी? तो एक्सपेक्टेड क्वांटिटी तो वेरी सिंपल ये क्वेश्चन में. कैन यू टेल मी हाउ मच इज माय परचेज क्वांटिटी? 5000. परचेज क्वांटिटी इज 5000. उसमें से वो लोग क्या बोल रहे हैं? 20% इज मटेरियल शॉर्टेज. 20% बहुत ज्यादा हो गया. 20% मटेरियल शॉर्टेज है. सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी केजीज या यूनिट्स जो हमको नहीं मिलेगा? 1000. सो हाउ मच इज एक्सपेक्टेड क्वांटिटी? 4000. एक्चुअल क्वांटिटी दिया भी नहीं और चाहिए भी नहीं. वैसे भी हम लोग डिवाइड किससे करने वाले हैं? एक्सपेक्टेड क्वांटिटी जिसे हम डिवाइड करने वाले हैं. एनीवेज, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे सॉर्टेड है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. यहाँ पे डिस्कशन इज ऑब्वियसली ऑन द न्यूमरेटर के टोटल कॉस्ट में क्या क्या लेना चाहिए. तो राइट डाउन, उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे. सो राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग पॉइंट नंबर 1. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल. Statement showing calculation of total cost of materials. Okay, ऐसा एक टेबल बनाओ for 10 to 12 lines. So, did you prepare? बोलो सबसे पहले what will you take, consider और start किससे करेंगे? Listed price. We will take listed price. So write down list price of materials. Listed price of materials. बोलो कितना? 2,50,000. Listed price of materials 2,50,000. Next question. Will you subtract trade discount? मतलब सी I will ask in other way. जो तरीके से हमको डिस्कस करना चाहिए. Should trade discount be deducted or should not be deducted? Deducted मतलब उसको हम लोग माइनस करेंगे. So write down next line less trade discount. कितना परसेंट है? 10% ऑफ व्हाट? 2,50,000 लिस्टेड प्राइस का होगा. देयर इज 25,000. सब्ट्रैक्ट करो 2,25,000. बोलो नेक्स्ट है CGST एंड SGST. विल यू टेक CGST एंड SGST? वाई? तो क्या करने का? ऐड की लेस एंड दैट इज अवर कॉस्ट एंड CGST 9% किसका करोगे?
2,25,000. बोलो how much? 20,000. 250. Okay, just total. 2,65,000. चलो next. Next comes very important point. Cash discount. Cash discount is 10%. Question is, will cash discount be deducted or cash discount will not be deducted? Okay, depends. ये 3 क्वेश्चन, रादर मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया है. कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करने का टोटल कॉस्ट में से, कैश डिस्काउंट को डिडक्ट नहीं करने का, कि इट डिपेंड्स. डिपेंड्स. ओके, डिपेंड्स ऑन व्हाट? मतलब हमको कैश डिस्काउंट मिला है कि नहीं मिला है. ओके, सो हमको कैसे पता चलेगा कैश डिस्काउंट मिला है कि नहीं मिला है? नीचे दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? हाँ, 21 डेज में हम लोग ने पेमेंट कर दिया, तो हमको कैश डिस्काउंट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? मिला होगा. तो इसको डिडक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, तो गलत है वो. कैश डिस्काउंट कभी भी डिडक्ट नहीं करने का. ऐसा ना हम लोग कॉस्ट शीट चैप्टर में पढ़ चुके थे कि आइटम्स टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड में डिस्काउंट अलाउड को इग्नोर करते हैं हम लोग, या डिस्काउंट रिसीव्ड को भी इग्नोर करते हैं. अरे कैश डिस्काउंट कभी भी डिडक्ट नहीं करना चाहिए. मैंने इतना बड़ा एक टेबल बना के दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि इसके ऊपर भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं. पढ़ो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. पेज नंबर 36 पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3. बोलो डिडक्ट करने का कि नहीं करने का. पहला वाला क्या है बोलो तो? ट्रेड डिस्काउंट. बोलो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने का कि नहीं करने का? करने का. क्वांटिटी डिस्काउंट करने का. क्वांटिटी डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड डिडक्ट करने का. थर्ड वन क्या है? कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने का नहीं करने का कि डिपेंड्स? नहीं करने का. नेवर इट शुड बी डिडक्टेड बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस आइटम. फिर कल तुमने पढ़ा रहेगा गवर्नमेंट ग्रांट, पढ़ा है ना? हाँ, लेकिन वो यहाँ पे वो जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट का पढ़ा रहेगा तुमने. हाँ, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना वो रॉ मटेरियल के लिए मिला है. मॉरल ऑफ द स्टोरी. या डिडक्ट करने का कि नहीं करने का? अरे करने का लिखा है ना इधर, इट इज डिडक्ट. उधर भी तो तुम करते हो ना एसेट रिडक्शन मेथड. अरे ऐसा नो. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं. फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस. तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये सब इंक्लूड करने का कि नहीं करने का? करने का. इनफैक्ट एक क्वेश्चन में हमको टोल टैक्स दिया हुआ है, देखो. इज इट गिवन? यस. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, तो इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज इफ क्रेडिट फॉर द सेम इज अवेलेबल, बट इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज. सेम विद कस्टम ड्यूटी. जनरली कस्टम ड्यूटी हम ऐड करेंगे क्योंकि उसका क्रेडिट हमको अवेलेबल नहीं है. तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बारे में हो गया. बाद में पेनल्टी एंड चार्जेस है, अदर एक्सपेंडिचर है. 1 बाय 1 सब आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है. इनफैक्ट ये क्वेश्चन में नेक्स्ट कॉस्ट कौन सा है बोलो? चलो कॉस्ट वाइज ही बात करते हैं. नेक्स्ट कौन सा दिया है? बिफोर वी कंक्लूड और बिफोर वी प्रोसीड, कैश डिस्काउंट को लेने का कि नहीं लेने का? के डिपेंड्स. कभी नहीं लेने का. कैश डिस्काउंट मिला रहेगा तो भी नहीं लेने का, नहीं मिला रहेगा तो भी नहीं लेने का. कैश डिस्काउंट इज नेवर डिडक्टेड. नेक्स्ट है तुम्हारा टोल टैक्स. बोलो टोल टैक्स को हम लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे. तो एक काम करो, उसने चेक ऐड कर दो पहले. Add toll tax. बोलो what is the amount of toll tax? 5,000. डोंट टोटल. चलो टोल टैक्स के बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है उधर? फ्रेट इंश्योरेंस लेने का कि नहीं लेने का? लेने का. देखो इंश्योरेंस चार्जेस पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 9, सॉरी 11, 12, 13. 11 में क्या लिया है? इंश्योरेंस चार्जेस. इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांसिट इज वन ऑफ द
expense incurred at the time of purchase of raw material, it should be added with the cost of purchase. Next लिया है तुम्हारा commission और brokerage, that should also be added with the cost of purchase, वो हमारा cost of purchase है. Freight inwards को भी ऐड करना चाहिए, तो ये सब में कोई डिस्कशन नहीं है. बोलो नेक्स्ट वन कौन सा था? एनीवेज कॉस्ट, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो उसको ऐड करना चाहिए कि नहीं? इनफैक्ट दोनों है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस भी है और उसके नीचे कमीशन एंड ब्रोकरेज भी है, यस और नो? तो वो दोनों ऐड करना चाहिए, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है. व्हाट इज अमाउंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस? 17,000. नेक्स्ट कौन सा? कमीशन एंड ब्रोकरेज. बोलो कितना? 10,000. ओके, नाउ वन स्मॉल डिस्कशन, इट इज सिंपल. कौन है नेक्स्ट वाला कॉस्ट? कौन सा बताओ? डेमरेज. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमरेज? कभी सुना है? शिप पे वो क्या? शिप में गुड्स भूल गए, ऐसा कैसा भूल सकते हैं हम लोग गुड्स? शिप का कुछ तो है, इधर लिखा है, पढ़ो. डिमरेज इज व्हाट? पेनल्टी इम्पोज्ड बाय होम? ट्रांसपोर्टर. काय के लिए? Why he is imposing penalty on us? Delay in uploading or offloading of material. एक मिनट, नहीं समझ में आया इसका मतलब क्या? अरे शिप नहीं होता है, तुम है ना एग्जाम्पल सुनते हो लेकिन आधा सुनते हो. तुमने शिप से गुड्स मंगाया, मैं तुमको कस्टम्स का एग्जाम्पल देता हूं. तुमने अगर है ना इंपोर्ट किया तुम्हारा रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके यहाँ पे ना हमारे इधर डॉक पे अनलोड होता है. वो अनलोड होके ना पहले कस्टम के गोडाउन में जाता है. हाँ, क्या तुमको बताइए? हाँ, प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट में था ना, इंपोर्ट प्रोसीजर्स. हाँ, तो उसमें किस में जाता है पहले? वो ऐसा कुछ तो था. हाँ, अरे कौन सा ज्ञान पता नहीं कहाँ काम आ जाता है. तो बोलो पहले, ये सब रफली बता रहा हूँ, वैसे भी कस्टम्स एक्ट एक्सेट्रा वो सब पढ़ना पड़ता है. तो उसमें क्या लिखा है कि फर्स्ट तुम्हारा गुड्स क्या होता है? अनलोड होता है. कहाँ पे अनलोड होके सीधा तुम अपना ट्रक में डाल के भागा के नहीं लेके आ सकते हो, पहले कस्टम के गोडाउन में जाता है, क्योंकि कस्टम्स वाला उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कैसे चार्ज करेगा, वो सब चेक करेगा कि तुम्हारा इनवॉइस क्या है, उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, वेट चेक करेगा, मटेरियल चेक करेगा. वो करने के बाद वो लोग कस्टम ड्यूटी, तब तक वो तुम्हारे कस्टम्स के गोडाउन में रहेगा. कस्टम्स के गोडाउन में जब तक रहेगा, वो लोग तुमको टाइम देंगे कि विद इन 48 आवर्स तुम्हारा गुड्स यहाँ से खाली करो, या 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर, व्हाटएवर एक्सवाइजेड. अगर तुमने वो गुड्स को वहां से क्लियर करने में डिले किया, तो वो लोग क्या इंपोज करेंगे? पेनल्टी. वो पेनल्टी को लोग क्या बोलते हैं? डेमरेज. वैसे ट्रांसपोर्टर्स भी होता है. अभी मैं फॉर एग्जांपल किसी लोकल ट्रांसपोर्टर से गुड्स मंगा रहा हूँ, तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई लोकल ट्रांसपोर्ट में गुड्स या रॉ मटेरियल आ रहा है, एक काम कर, तू तेरे ट्रक में रख, मैं अनलोड करवाता हूँ, फिलहाल मेरे इधर जगह नहीं. तो वो बोला जो भी है 12 घंटे के अंदर खाली करो, मेरे को ट्रक चाहिए. अभी 12 की जगह तुम 18 घंटा लगाया, तो 6 घंटे का वो चार्जेस लेगा तुम्हारे पास से. मतलब दे आर इम्पोजिंग व्हाट ऑन यू? पेनल्टी. मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये पेनल्टी कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. विच कॉस्ट? abnormal cost. Never include abnormal cost while calculating your cost. See, I don't know whether तुमको समझ रहा है कि नहीं. ये तुमने डेमरेज पे किया, वो तुम्हारा गलती है. उसके ऊपर तुमने पेनल्टी पे किया, वो तुम्हारा गलती है. मैं तुमको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल तुम उबर में जा रहे हो, उबर में जा रहे हो और ड्राइवर ने फोन पे बात कर रहा है, उसको हवलदार ने पकड़ा, 1000 रुपया फाइन किया. अभी तुमको भरना पड़ेगा ना वो 1000 रुपया, क्यों नहीं? तो पेनल्टी है ना, उसका गलती है, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी कैसा है, ये हमारा गलती है. आई कैन नॉट इंक्लूड इट इन माई कॉस्ट पर यूनिट. यू कैन नॉट इंक्लूड विच आइटम्स वाइल कैलकुलेटिंग योर कॉस्ट पर यूनिट. एबनॉर्मल आइटम्स को तुम इंक्लूड नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट. तो डेमरेज, डिटेंचर चार्जेस, फाइन्स, पेनल्टी, ऐसा कोई भी जात का पेनल्टी रहेगा, वो तुम अपने कॉस्ट पर केजी में इंक्लूड
नहीं कर सकते हो, मतलब इसको इंक्लूड करने का कि नहीं करने का, नहीं करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा कॉस्ट दिया वहां पे, वो तो ले लिया, कमीशन एंड ब्रोकरेज। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन नाउ? हाँ, ये कंटेनर्स का एक छोटा सा डिस्कशन है जो इज वेरी सिंपल। यू कैन कम टू पॉइंट नंबर 14, दैट इज कंटेनर्स। अभी कंटेनर्स में ना तीन पॉसिबिलिटी है। नंबर वन, इफ द कंटेनर्स आर नॉन रिटर्नेबल। अभी फॉर एग्जाम्पल ये सब है ना बहुत ही सिंपल है। तो मैं ना इधर से सीधा जाओ, एक होटल है कॉल्ड एज कीर्तिमल, उसको बोलो मेरे को है ना सांबर पार्सल चाहिए, तो वो है ना प्लास्टिक का थैली में बांध के देता है। उसको बोला थैली में नहीं, मेरे को है ना डब्बे में चाहिए, तो डब्बे का अलग से 5 रुपए लगाता है। यस और नो? नहीं मालूम है, वो लगाएगा 5 रुपया। 5 रुपया या 10 रुपया कंटेनर का लगाता है, तो कंटेनर वो बिल में ऐड करेगा। तो इज इट योर कॉस्ट? यस, नॉन रिटर्नेबल। उसको बोलो घर पे खाली करके डब्बा वापस देके जाएगा, पैसा देगा क्या वापस? वो पूछ के देखो देता रहेगा। तो वो सेकंड केस में आएगा, रिटर्नेबल कंटेनर्स। केस नंबर 1 क्या है? नॉन रिटर्नेबल। लेके जाओ, 5 रुपया हमको दे दो। तो बोलो इफ इट इज नॉन रिटर्नेबल, इज इट योर कॉस्ट? यस, इट शुड बी एडेड। सो द कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब सप्लायर ने बोला हम कंटेनर में भेजेंगे, लेकिन कंटेनर का अलग चार्जेस लगेगा। अच्छा, तो उसको पूछो इज दिस रिटर्नेबल? बोला नहीं। बोला ठीक है, तो वापस। तो नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स शुड बी एडेड। अब ये ना रिटर्नेबल कंटेनर्स, इसका मैं दूसरा एग्जांपल, आई डोंट नो नाउ इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। व्हाई इट इज नॉट एग्जिस्टिंग? क्योंकि वो मुझे नहीं पता है। मुझे क्यों नहीं पता है उसका भी मैं तुमको आंसर देता हूँ। आई डोंट नो अभी, बिकॉज आई डोंट कंज्यूम, दैट इज व्हाई आई डोंट नो। वो थम्स अप, कोको कोला सब आता है ना, पहले वो कांच का बॉटल में आता था। अभी मेरे को पता नहीं है कांच का बॉटल अभी है कि नहीं है, आई डोंट नो, आई डोंट ड्रिंक, सो आई डोंट नो। आता रहेगा, ओके, क्योंकि अभी तो सब प्लास्टिक ही हो गया है। इनको सबको क्या है, पब्लिक को कैंसर ही बांटना है, तो कैसे बांटेंगे अभी? दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। बोला इनको प्लास्टिक में बांटो, पहले तो जहर पिलाओ, फिर प्लास्टिक में पिलाओ, सो दैट कैंसर पक्का होएगा। फिर दवा भी उसके लिए हम ही देंगे, उसको मेडिकेशन भी हम ही प्रोवाइड करेंगे एट हायर कॉस्ट। मीन्स वी हैव मेड, इंसानों को हमने कमोडिटीज बना दिया। मतलब समहाउ वी हैव टू मेक मनी आउट ऑफ दिस पीपल, इट इज अल्टीमेटली बिजनेस। सो एनीथिंग विच इज इंक्लूडेड इन प्लास्टिक इज पॉइजन, दैट इज फॉर श्योर। तुम कुरकुरे खाओ, बिस्किट खाओ, XYZ कुछ भी खाओ, तो वो सब कुछ पॉइजन है। मतलब यू आर कंज्यूमिंग पॉइजन ऑन डेली बेसिस। हाँ, बस खाली ये है कि तुम, वो इफेक्ट तुम पे कभी दिखेगा, वो टाइम विल टेल। तो पहले क्या होता था, मतलब में कांच का बॉटल आता था। अब वो कांच का बॉटल है ना, हम लोग पहले ये लोग लेते थे फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर और व्हाटएवर। तो बोला 12 रुपया 10 रुपए का बॉटल है, तुम लेके जाओ, वापस देके जाओगे ना तो 2 रुपया हम वापस देंगे। तो दैट इज रिटर्नेबल कंटेनर्स। रिटर्नेबल मतलब सिंपल है, तुम पहले पैसा दे दो, बाद में तुम जब रिटर्न करोगे ना तो हम 2 रुपए, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, रॉ मटेरियल का एग्जांपल चल रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल तुमको रॉ मटेरियल उसने कंटेनर में दिया, अब तुम बोलो हम तुमको ये कंटेनर वापस दे देंगे। बोला ओके, वी विल रिटर्न और रिफंड यू सम अमाउंट, बट दे मे नॉट रिटर्न यू 100%, दे मे रिटर्न यू पार्टली। पूरा रिफंड कर दिया तो तुम्हारा कॉस्ट ही नहीं है। मतलब तुम्हारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट अलग है, कंटेनर का कॉस्ट अलग है। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी, अमाउंट फॉर कंटेनर्स दैट इज डिपॉजिटेड इज 30,000, मतलब तुमको 30,000 रुपया कंटेनर का अलग से देना पड़ेगा, बरोबर है। अब तुमने सपोज कंटेनर रिटर्न कर दिया और वो तुमको पूरा रिफंड कर रहा है, तो तुम्हारा कॉस्ट 0 हो गया। दैट इज व्हाट इज रिटर्न। If the containers are returned and their cost is refunded, then the cost of container should not be considered in the cost of purchase. Common sense है, तुमने 30,000 पे किया, तुमको 30,000 पूरा वापस मिल गया, तो is there any cost that is for to be added to the cost of purchase? No. तुम्हारा कॉस्ट कब हो जाएगा? हाँ, अगर तुमको सपोज रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर इज लेस देन द अमाउंट पेड, ऑब्वियसली, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस हाउ मच इज रिटर्निंग, तो तुम्हारा कॉस्ट कितना हो गया? 10,000, वो तुमको ऐड करने का, दैट विल बी इन, देन द शॉर्टफॉल विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज। सो ये सब काफी कॉमन सेंस है। तो ये दो केस पॉसिबल है कंटेनर्स में, वन इज नॉन रिटर्नेबल एंड नॉन रिटर्नेबल में तो ऐड ही करना है, इट इज वेरी सिंपल। रिटर्नेबल में दो पॉसिबिलिटी है। नंबर वन, अगर तुमको पूरा रिफंड मिल जाता है तो तुम ऐड नहीं करोगे क्योंकि वो तुम्हारा कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर तुमको पार्ट रिफंड मिलता है, तुमने जितना भरा उससे ज्यादा तो रिफंड देगा नहीं वो, ठीक है, तो 30,000 में से उसने सिर्फ कितना रिफंड किया, तो तुम्हारा कॉस्ट कितना होगा?
तो ऐड करोगे या नहीं करोगे? करेंगे. राइट डाउन कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स या कॉस्ट ऑफ better language is returnable containers. Underline that. नेक्स्ट लाइन में लिखो अमाउंट डिपॉजिटेड इसका अमाउंट है ना वो डोंट राइट इन रुपीस कॉलम. इसका अमाउंट कैलकुलेशन कॉलम में ही लिखो बिकॉज वी डोंट हैव इनर कॉलम. नेक्स्ट लाइन माइनस अमाउंट रिफंडेड. Okay, how much is amount refunded? 20. So net 10,000 वो तुम्हारा cost, which will be of course added. ये टेबल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर वो लोग बहुत थियोरी क्वेश्चंस पूछते हैं कि फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी एडेड नॉट एडेड, ये सब तुमको पूछेंगे. चलो ये हो गया. डू वन थिंग, अब इसका टोटल चाहिए मेरे को. What is the total? 3,07,500. This is total cost excluding other expenses. Okay, how much is other expenses? 2%. उसके अंदर अदर एक्सपेंसेस को ऐड करोगे बोलो अदर एक्सपेंसेस इज हाउ मच परसेंट? 2% ऑफ व्हाट? टोटल कॉस्ट. कितना है टोटल कॉस्ट? 3,07,500. वो गलत है. 3,07,500 ये अदर एक्सपेंसेस 2% किसका लेने का? इंक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस के एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस. पहले क्वेश्चन को पूछने का. हैज क्वेश्चन टोल्ड यू एनीथिंग? नो. इधर बोला है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट. तो किसका 2% हम लोग कंसीडर करेंगे? टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस के एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस. इफ इट इज एक्सक्लूडिंग तो 3,07,500 का 2% इज गेम ओवर. बट यहाँ पे हम लोग इंक्लूडिंग 2% और इंक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस हम लोग करेंगे. तो इट इज 2% ऑफ व्हाट? 100. 100 का 2% कितना होता है? 2. तो ये जो 3,07,500 है वो मैथमेटिकली कितना हो गया? 98. नो इट इज नॉट 102. अरे 102 में ऐड 2 करोगे तो 104 होएगा ना. ये क्या है? 98. चाहिए तो यहां पे लिख दो. इट इज 2% into total cost including other expenses. Including what is important? अभी इंक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं है तो उसको हम लोग ने 100 अज्यूम किया. तो अदर एक्सपेंसेस विल बी 2. Okay, we will write the calculation. We have a calculation column. So here other expenses के सामने calculation column में 3,07,500 into 2/98. बोलो how much? Is it in decimals? तो round off करके बोलो कितना है? 6,276.75.510 ऐसा कुछ तो है. तो 6,276 लिख दो. You can also keep it up to 2 decimals. That will also be fine.
Okay, what is the total? 3,13,776. This is total cost of material. Point number 2, cost per unit of raw material. Is equal to 3,13,776 divided by, बोलो हाउ मेनी यूनिट से हम डिवाइड करेंगे? कैन आई डिवाइडेड बाय 5,000? नो, तो कितने से डिवाइड करेंगे? 4,000 यूनिट्स. ये 4,000 यूनिट्स कहाँ से आया? चाहे तो बाजू में ब्रैकेट में बता दो. दैट इज 5,000 माइनस 20% ऑफ 5,000 वाज हाउ मेनी यूनिट्स? सपोज उसका तुमको स्क्रैप वैल्यू देता है कि वो जो 1,000 यूनिट्स है उसको हम लोग ने 5 रुपए में स्क्रैप किया है, तो वो हम लोग इसमें से क्या करते हैं? लेस न्यूमरेटर में से. बोलो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 78.44 पर यूनिट. Okay, so till now what we have done is valuation of material receipts. मतलब जो हम materials purchase कर रहे हैं उसका हम लोग ने cost ascertain किया. Now we have to go for valuation of material issues. मतलब हम जो materials issue करते हैं उसको किस पे value करने का, वो value करना important है. Because issues मतलब it is ultimately going to be your raw material consumed. और तुम जो इश्यू कर रहे हो वो इश्यू करने के लिए तुमको कोई तो मेथड फॉलो करना पड़ेगा. मतलब हमने कौन सा रॉ मटेरियल इश्यू किया है, तो अगर हम फीफो फॉलो कर रहे हैं मतलब जो पहले हम लोग ने परचेज किया वो पहले हम इश्यू कर रहे हैं एंड सो ऑन. सो दैट इज योर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स or material issues, for which we have 3 questions 16, 17, 18. 16 में तीनों मेथड के हिसाब से करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज मेथड. क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को फीफो मेथड के हिसाब से करना है एंड क्वेश्चन नंबर 18 में we are doing it as per weighted average method. चलो first we will do it as per all 3 methods. Very simple question. So I am reading question number 16. Following information is extracted from store's ledger. Material X का opening stock 0. Purchases. There were 2 purchases. One on Jan 1 and second one is on Jan 20. 100 units purchase किया है at 1 rupee per unit. And Jan 20 में हम लोग ने purchase किया 100 units at 2 per unit. Issues. Jan 22 and Jan 23. Next, complete receipts and issues valuation under 3 methods: FIFO, LIFO and weighted average. तो ये फर्स्ट थिंग वो लोग करने के लिए बोल रहे हैं. सेकंड वो लोग करने के लिए बोल रहे हैं टैब्यूलेट. क्या टैब्यूलेट करना है हमको? टैब्यूलेट वैल्यूज एलोकेटेड टू जॉब W16, job W17 and closing stock under the aforesaid methods. ये सेकंड बोला है. एंड नंबर 3 वो लोग ने हमको क्या करने के लिए बोला है? डिस्कस करने के लिए बोला है. क्या डिस्कस करने के लिए बोला है? फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू विच मेथड विल यू प्रेफर. तीनों मेथड के हिसाब से पहले कैलकुलेशन करो एंड बाद में जो भी तुमने कैलकुलेट किया है उसको टैब्यूलेट करो अंडर ऑल 3 मेथड्स. एंड नंबर 3 में वो लोग बोल रहे हैं यू हैव टू डिस्कस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू
कि कौन सा मेथड को तुम प्रेफर करोगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप करते हैं क्योंकि वो मोर और लेस हम सबको आता है। दैट इज यू आर सपोज टू कंप्लीट रिसीट्स एंड इश्यूज वैल्यूएशन। रिसीट्स एंड इश्यूज वैल्यूएशन के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। दैट टेबल इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टोर्स लेडजर। चलो, आई थिंक यू नो द फॉर्मेट ऑफ स्टोर्स लेडजर। Write down stores ledger. This is for which material? Material X. पहले हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? हाँ, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, डू यू रिकलेक्ट फॉर्मेट? पहला कौन सा कॉलम बनेगा? डेट। बाद में रिसिप्ट्स में कितने सब कॉलम्स बनेंगे? 3। क्या हेडिंग आएगा? क्वांटिटी इन यूनिट्स। सेकंड, रेट पर यूनिट। थर्ड, अमाउंट। वही 3 कॉलम इश्यूज, वही 3 कॉलम बैलेंस। और हमको 3 मेथड के हिसाब से करना है। तो एक काम करो, पूरे पेज का बना दो, बाद में बीच में इरेज कर देंगे। चलो, प्रिपेयर द फॉर्मेट। हम लोग को सब अलाउड है। चलो, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वी आर डूइंग फीफो मेथड। वेरी सिंपल। बोलो कैसे स्टार्ट करने का इसको? फर्स्ट व्हाट वी विल राइट इन दिस टेबल? नहीं, डू यू हैव ईयर? नहीं। तो नेक्स्ट क्या लिखने का इसके अंदर? डू यू हैव ओपनिंग बैलेंस? नहीं। ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 0 है। तो डायरेक्टली क्या है? परचेज मतलब क्या है? रिसीट्स के इश्यूज। रिसीट्स। रिसीट्स में ऑफ कोर्स वी विल राइट डेट फर्स्ट, दैट इज Jan 1। हाउ मच क्वांटिटी इज परचेज्ड? 100। What is the price? 1। रेट पर यूनिट इज 1। तो अमाउंट कितना हो गया? 100। सेम बैलेंस में आएगा 100। नेक्स्ट, इसमें ट्रांजैक्शन जो डेट वाइज है, वी हैव टू गो एज पर द डेट ऑफ कोर्स। बोलो नेक्स्ट क्या है? Jan 20। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? परचेज, तो मतलब रिसीट्स है 100। ओके, कैन वी कंबाइन दीज टू? नो। तो हमको सेपरेट रखना पड़ेगा। Okay, and then we have issues. On which date? ये issues मतलब क्या? This is issued by which department to which department? Stores department to production department. हम क्या बना रहे हैं? What are we preparing? Stores ledger. Okay, बोलो issues में कितना आएगा? 60 units. सो इश्यूज में 60। बोलो विच प्राइस वाला हमने इश्यू क्या रहेगा? वाई? FIFO मेथड इज बीइंग फॉलो। नाउ फॉर राइटिंग बैलेंस, 100 में से 60 गया, 40 बचेगा ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी वाला एज इट इज।
I think you have done this. Sure. Next, we are doing one more issues. On which day? 23rd. Again, कितना issue किया है? 60 units. Can we directly write 16 issues? No. First, we will issue how many units? 40 of 1 rupee. Major mistake. चलो 40 गया. One more issue. Okay, what is the balance now? How many units are balance? 80. कितने वाला? 2. That is 160. बोलो. This is how much is closing stock का quantity? 80. और उसका वैल्यू कितना है? This is under which method? अब यही हमको किस में करना है? और बनाओ. उसी में नीचे you can extend. Maybe you can not give headings. वो headings you can give it as homework. Just give the heading stores ledger, material X, last in first out. See, don't argue. Last in first out is not allowed. Last in first out costing में allowed है, करना पड़ेगा. वो लोग ने बोला है. इनफैक्ट होमवर्क में क्वेश्चन है, जरूर करना. उसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट का एडवांटेजेस पूछा है. ठीक है. चलो नाउ लिसन केयरफुली वेदर यू एग्री. Jan 1 और Jan 20 का तो सेम ही रहेगा. Jan 1 एंड Jan 20 तक तो सेम ही रहेगा. बैलेंस भी सेम ही रहेगा. Jan 20 का क्या हुआ? ₹100, ₹1, no change. Now, when will change take place? While issues on 22nd. Now we are following which method? LIFO. So how many issues are there on 20th? Sorry, 22nd. 60 will be issued from which price? 2. वो होगा 120. 1 rupee वाला untouched as it is, and 2 rupee वाले में से 40 units बचा है. This is very simple. (23rd) को भी इशू हुआ है, तो बोलो फर्स्ट किस में से इशू करेंगे? 40 units of 2 rupee, that is 80. And there is one more issue, that is 20 of ₹1, that is 20. So balance में 80 बचेगा 1 rupee वाला. See, क्वांटिटी तो सेम ही आएगा, that is 80, because यूनिट्स तो 80 ही बचा है. वैल्यूएशन चेंज हो गया है, बिकॉज फर्स्ट यू आर फॉलोइंग विच मेथड? FIFO. नाउ यू हैव फॉलोड विच मेथड? LIFO. तो LIFO में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू कितना आया? 80. बाकी क्वांटिटी तो सेम ही आएगा ना, पहले 80. इनफैक्ट वेटेड एवरेज में भी अभी सही बता देता हूँ, क्वांटिटी 80 ही आएगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा. सो नेक्स्ट मेथड इज व्हाट? वेटेड एवरेज. तो उसका टेबल बनाओ.
उसी पेज पे बैठता रहेगा तो बेटर है. वी विल रिक्वायर ओनली 4 to 5 लाइन्स. नहीं है तो नेक्स्ट पेज, नो चॉइस. विदाउट हेडिंग्स उसी पेज में बैठ जाएगा. ऑब्वियसली एग्जाम में यू टू गिव हेडिंग्स. इफ दिस क्वेश्चन कम्स 3 बार बनाना पड़ेगा टेबल विथ हेडिंग. क्यों नहीं आएगा? 7, 8, 9 कितने भी मार्क्स का आ सकता है, उसमें क्या है. हाँ तो मार्क्स एंड लेंथ हैज नो प्रपोर्शन. वो लोग ने डाल दिया, तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा. चलो Jan 1 नो चेंज, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस. Okay, till here you can do, and then further we will do it together. Okay, can you now explain कि further step क्या होगा? Jan 1 को we purchased, that is receipts. ये by the way receipts issues हम लोग जो लिख रहे हैं, that is from whose point of view? I had explained something called as material procurement procedure, if you remember. ये जो receipts issues जो हम कर रहे हैं, that is from whose point of view? Stores department. ये stores ledger जो हमने बनाया है, ये stores ledger में receipts में कब लिखोगे? When will any entry come in receipts? Purchase is wrong answer. Whenever material comes into the stores, material comes into the stores, तो हम किधर लिखेंगे? Receipts. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो परचेस ही होगा. क्या हूं? दूसरा एग्जांपल दो. We will enter in receipts, but that is not purchase. मतलब हमने पहले परचेस किया, बाद में परचेस रिटर्न किया, और बाद में मुझे रिप्लेसमेंट मिला, तो वो रिसीट्स में आएगा. ओके, एनी अदर ट्रांजैक्शन जो रिसीट्स में आएगा? प्रोडक्शन नहीं, उतना कंजम्पशन नहीं हुआ. Because you are issuing what? Raw material to which department? Production department. लेकिन production department found that material is in excess, तो उसने बैक कर दिया स्टोर्स को. तुम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो? स्टोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब स्टोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो रिसीट हुआ ना. इश्यूज में कब आएगा? मतलब खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू हो रहा है तभी इश्यूज में आएगा. परचेस रिटर्न हुआ तभी भी आएगा. यस और नो? स्टोर गुड्स लेके भाग रहा है तो किधर आएगा? अरे वो क्या ट्रीटमेंट देने का वो नहीं पूछ रहा हूं. रिसीट्स में आएगा कि इश्यूज में आएगा? इश्यूज में आएगा. यस और नो? ये स्टोर्स लेजर बाय द वे बना था कौन है? विच डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स दिस स्टोर्स लेजर? करंटली ये जो स्टोर्स लेजर बना रहे हो, ये कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है? No, it is cost accounting department who prepares stores ledger. It is not stores department. Stores department prepares bin card. Stores department क्या बनाता है? bin card. ये मैंने पहले भी वर्ड यूज किया था. I think I have used this word bin. किधर है? शायद मैंने इरेज कर दिया, वरना अभी मैं प्रूव करता. bin करके मैंने वर्ड यूज किया था. bin is the place of storage of raw material. bin मतलब जिसके अंदर तुमने रॉ मटेरियल स्टोर किया है. वो डब्बा हो सकता है, सैक हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, मटका हो सकता है. एनी प्लेस वेर यू स्टोर रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज व्हाट? bin. और bin के बाहर एक कार्ड लगाया रहेगा. वो कार्ड में तुम क्या रिकॉर्ड करोगे? वो कार्ड में भी रिसीट्स एंड इश्यूज रिकॉर्ड होगा, बट सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है. स्टोर्स
डिपार्टमेंट किसमें एंट्री करेगा? बिन कार्ड में। नो, स्टोर्स डिपार्टमेंट किसमें एंट्री करेगा? बिन कार्ड में एंट्री करेगा। उनको अमाउंट से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ किससे लेना देना है? क्वांटिटी से लेना देना है कि भाई बिन के अंदर कितना क्वांटिटी है ना कितना गया, उनको अमाउंट से लेना देना नहीं है। लेकिन विच डिपार्टमेंट इज रिकॉर्डिंग और प्रिपेयरिंग द स्टोर्स लेडजर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। ये डिस्टिंग्विश एग्जाम में पूछते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश में पॉइंट नंबर 1, बिन कार्ड कौन बनाता है? स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर कीपर बिन कार्ड में अंदर एंट्री करेगा। बिन कार्ड में सिर्फ किसका एंट्री किया जाता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रहता है, खाली क्वांटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा। लेकिन स्टोर्स लेजर जो कौन बनाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर स्टोर्स लेजर एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट दोनों एंटर करता है। इट इज एंटरिंग क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू ऑफ दैट रॉ मटेरियल। So when you are saying receipts issues, इसका मतलब क्या है? You are a cost accounting department. See, मैंने लास्ट टाइम भी वर्ड्स यूज किया था। I also told कि मैं ये सब को आगे फ्यूचर में कनेक्ट करूंगा या यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल तुम एक MRN बना रहे हो। व्हाट इज MRN? Material requisition note. Material requisition note has been issued by which department to which department? तो ऑन दैट बेसिस मटेरियल रिक्विजिशन नोट नंबर के हिसाब से स्टोर्स डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल इशू कर रहा है। तो इसका एक कॉपी किसको देना पड़ेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देखेगा ओके चलो MRN मतलब ये रॉ मटेरियल स्टोर्स ने प्रोडक्शन को इशू किया रहेगा, तो वो जाके इश्यूज में लिखेगा। फिर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर्स को रिटर्न किया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक नोट बनाएगा या स्टोर्स डिपार्टमेंट नोट बनेगा मटेरियल्स रिटर्न नोट। तो मटेरियल रिटर्न नोट वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देंगे। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देखेगा रॉ मटेरियल्स वर रिटर्न बैक टू स्टोर्स, तो स्टोर्स में वो रिसिप्ट्स हुआ। yes or no? So now can you tell me, we are following weighted average method. वेटेड एवरेज मेथड में फर्स्ट आई परचेस्ड 100 यूनिट्स जिसका रेट वाज 1। नाउ मैंने एक नया लॉट खरीदा 100 रुपीज जिसका रेट है 2। अब आगे का प्रोसीजर कैन यू एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है मालूम है? वेटेड एवरेज कभी सुना है? वेटेड एवरेज किया है? वेटेड एवरेज कौन से चैप्टर में वेटेड एवरेज किया है? कौन से चैप्टर में? अरे इतना दूर क्यों जा रहे हो? अभी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में क्या रहेगा ना वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, यस और नो? तो वो वेटेड एवरेज सेम है। वेटेड एवरेज क्या बोलता है? मेरे पास 1 रुपी वाला 100 यूनिट्स था, अब मैंने नया यूनिट्स खरीदा 2 रुपीस वाला, बराबर है? अब मेरे पास 2 हो गया, बराबर है? वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है मालूम है? ये दोनों को ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो? क्वांटिटी को ऐड कर दो। अब तुम क्वांटिटी को ऐड करोगे ना, इट मींस नाउ दे लूज देयर आइडेंटिटी। मेरे लिए अभी सब सेम है, मतलब टोटल मेरे पास क्वांटिटी कितना हो गया? 200 क्वांटिटी हो गया। तो जैसे तुम लोग ने क्वांटिटी को ऐड किया है वैसे अमाउंट को भी ऐड कर दो। मेरा टोटल कॉस्ट कितना? 300 आफ्टर परचेज ऑन 20th Jan। कैन यू टेल मी हाउ मच इज माय टोटल कॉस्ट? 300। दिस टोटल कॉस्ट इज, और दिस इज नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 200 यूनिट्स विथ मी। अब मैं इसमें भेदभाव नहीं कर रहा हूं कि भाई तू 1 रुपये वाला नहीं, तू 2 रुपये वाला। मैं क्या कर रहा हूं? ये पूरा 300 का कॉस्ट सब पे स्प्रेड कर रहा हूं, दैट इज 200 यूनिट्स पे। सो नाउ माय वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना हो गया? वेटेड एवरेज हम लोग ने कॉस्ट शीट में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया। इफ यू डू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग वेटेड एवरेज। सो वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है कि तुम क्वांटिटी को ऐड करो, ऑफ कोर्स कॉस्ट को भी ऐड करो, बाद में क्वांटिटी को ऐड करो। दिस विल नाउ बिकम योर टोटल कॉस्ट फॉर टोटल क्वांटिटी अवेलेबल, दैट इज 200। सो ये जो 1.5 इज वेटेड एवरेज प्राइस। चलो नाउ 22 को क्या हो रहा है? इश्यूज। कैन यू नाउ टेल मी कि ये जो 60 इशू किया, क्या हम बोल सकते हैं 1 रुपये वाला इशू किया या 2 रुपये वाला इशू किया? नो। अब मेरे लिए सब कौन है? 1.5 वाला। सो 60 इंटू 1.5, बोलो 60 इंटू 1.5 कितना होता है? 90। सो मच इज बैलेंस?
बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसीजर, जैसे तुमने ऐड में यूज किया वही लेस में यूज होता है. 200 माइनस 60 140, 300 माइनस 90 210, पर यूनिट सेम ही आएगा 1.5. दिस इज वेरी सिंपल. वेटेड एवरेज को हम लोग दिखेंगे इन क्वेश्चन नंबर 18. उसमें वेटेड एवरेज का बड़ा डिस्कशन या बड़ा समय. बोलो नेक्स्ट क्या है. अगेन 60 1.5 90. क्लोजिंग स्टॉक में 80 यूनिट्स ही आएगा. आई टोल्ड यू वेदर यू फॉलो फीफो, वेदर यू फॉलो वेटेड एवरेज और यू फॉलो लीफो, सब में क्वांटिटी 80 ही आएगा. व्हाट डज कीप ऑन चेंजिंग इज ओनली द वैल्यू. 210 माइनस 90 120 डिवाइड बाय 80 1.5. दिस इज वेटेड एवरेज 1.5. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में वो लोग ने क्या बोला है, कंप्लीट रिसीट्स एंड इश्यूज वैल्यूएशन. डिड यू डू दैट. नाउ वो लोग बोल रहे हैं टैब्यूलेट. क्या टैब्यूलेट करना है. टैब्यूलेट व्हाट, वैल्यूज एलोकेटेड टू job W16, job W17 and closing stock. Now there is one new word. What is the new word that we have come across? Job. See this subject में in fact हम लोग next lecture में ये करेंगे. Next lecture में we will study something called as which costing, batch costing. There is something called as batch, there is something called as job. पहले मैं बैच एक्सप्लेन करता हूं. इट्स वेरी इजी. बैच इन फैक्ट्रीज, इन बिग बिग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लॉट्स. तुम कोई भी बिस्किट, चिप्स जो तुम खाते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, उसके पैकेट के ऊपर लिखता है बैच नंबर या लॉट नंबर. बैच नंबर मतलब क्या, उस बैच में बहुत सारा यूनिट्स, सेम यूनिट्स प्रोड्यूस किया गया है, आइडेंटिकल यूनिट्स रहेगा वो. यस और नो. आइडेंटिकल यूनिट्स. मैं एग्जांपल देता हूं बैच का. घर पे कभी मम्मी को इडली बनाते हुए देखा है. विल शी स्टीम 1 इडली एट अ टाइम. नो. वो इडली का कुकर रहता है, तो तुम 12 इडली का एक बैच डालोगे. सेकेंड एग्जाम्पल, ये केक शॉप एक्सेट्रा पेस्ट्रीज बेक करते हैं, तो विल दे बेक 1 पेस्ट्री एट अ टाइम. मतलब पहले एक पेस्ट्री तैयार करते हैं, उसको बेक करते हैं, उसको हम करेंगे बाद में रखेंगे, फिर दूसरा पेस्ट्री, कि दे विल मेक इन बैचेस. बैचेस दैट इज कॉल्ड एज बैच कॉस्टिंग. तो जैसे हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाया था, वैसे आगे चैप्टर आएगा जो हम लोग रिजल्ट के बात करेंगे. आई टोल्ड यू बैच कॉस्टिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. बैच कॉस्टिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 हम इसी के साथ करेंगे ऑन Wednesday lecture. We will start and complete. 4 ही क्वेश्चन है उसके अंदर. एंड सेकेंड बैच कॉस्टिंग पार्ट 2 में यू विल प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज बैच कॉस्ट शीट. तो कॉस्ट शीट बनाएंगे ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर बैच. तो एक होता है बैच कॉस्टिंग, दूसरा होता है जॉब कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग कौन फॉलो करता है. बैच कॉस्टिंग वो फॉलो कर रहा है जो सेम यूनिट्स बना रहा है बहुत सारा. It is not economical for me to produce 1 unit at a time or produce or manufacture 1 unit at a time. तो हम लोगों को क्या डिसाइड करना पड़ता है, क्या डिसाइड करना पड़ता है. We have to decide what should be my batch size. What should be my batch size. तीसरा एग्जाम्पल, कभी रास्ते पे या कभी किसी जगह पे तुमने वड़ा पाव खाया रहेगा, वो वड़ा पाव वाला एक वड़ा नहीं तलता एट अ टाइम. यस और नो. तो उसका बैच साइज डिसाइडेड रहता है, भाई एक साथ में 10 वड़ा तलूंगा, तो दैट इज बैच साइज. वैसे ही फैक्ट्रीज क्या डिसाइड करेंगे, व्हाट शुड बी देयर बैच साइज. उसका आंसर हम करेंगे इन वेडनेसडेज लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर. टुडे वी आर डिस्कसिंग, या टुडे हम लोग जॉब के बारे में बात करते हैं, ये भी हम करेंगे आफ्टर रिजल्ट. व्हेन यू गो टू ओवरहेड्स चैप्टर, वहां पे हम लोग जॉब कॉस्टिंग, इनफैक्ट वी हैव अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड एज जॉब कॉस्टिंग. जॉब मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ जॉब. पहले मीनिंग समझो, उसके बाद आई विल गिव एग्जांपल्स. देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ जॉब आल्सो. जॉब मींस when the production is done as per customer specification and requirement. When production is done as per customer specification and requirement. वही केक शॉप का एग्जांपल ले लो. केक शॉप जब पेस्ट्रीज बनाता है, अब उसने पेस्ट्री बनाया रहेगा, तो एक ही प्रकार का उसने बहुत सारा पेस्ट्री बनाया रहेगा. ये को भाई मेरे को एक वॉलनट ब्राउनी दे दो, ये सबका आइडेंटिकल रहता है.
लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी किसी का बर्थडे, कस्टमाइज केक, दैट इज अ जॉब। भाई मेरे को ये टाइप का केक चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को ये टाइप का केक चाहिए। यूजुअली हम बच्चे लोग के लिए केक बनाते हैं, तो कोई बोलेगा मेरे को फुटबॉल फील्ड वाला केक चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को क्रिकेट फील्ड वाला केक चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को स्पाइडरमैन के थीम वाला केक चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को ये फिल्म स्टार के थीम वाला चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को ये थीम वाला केक चाहिए। दैट इज व्हाट फॉर द केक शॉप, वन जॉब। इट इज अ जॉब, मतलब यू आर प्रिपेयरिंग और यू आर मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। मतलब जॉब कॉस्टिंग में वन जॉब इज सेम एज अनदर जॉब और बोथ आर डिफरेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, कार सर्विस सेंटर। कार सर्विस सेंटर में तुम जाते हो तो तुम्हारा कार जब सर्विसिंग में देते हो, दैट फॉर दैट पर्टिकुलर कार सर्विस सेंटर एवरी वर्क इज अ सेपरेट जॉब। इनफैक्ट मेरे को तो मैसेज आता है, व्हेन आई गिव कार फॉर सर्विसिंग, योर जॉब कार्ड हैज बीन क्रिएटेड। कार सर्विस सेंटर या टू व्हीलर सर्विस सेंटर। एग्जाम्पल नंबर 3, मोबाइल सर्विस सेंटर। कोई मोबाइल सर्विस सेंटर में जाके बैठो और उसको तुम बोलो कि भाई कोई बोलेगा मेरा बैटरी खराब हो गया, कोई बोलेगा मेरा स्क्रीन खराब हो गया, कोई बोल रहा है मेरा हेडफोन्स क्यों नहीं चल रहा है, कोई बोलेगा मेरा फोन ही नहीं चालू हो रहा है। तो हर जॉब या एवरी जॉब इज डिफरेंट। सो वो लोग क्या बनाते हैं, दे विल प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज जॉब कॉस्ट शीट। सी वेदर इट इज जॉब कॉस्ट शीट और बैच कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो वही रहेगा जो हम लोग ने पढ़ा है। बट जॉब में क्या होता है, ईच जॉब इज डिफरेंट देन अनदर जॉब। बट बैच में क्या होता है, अब ये एसी है, तीनों में तुम डिफरेंस फाइंड आउट करके दिखाओ। हो सकता है ये तीनों एक ही बैच में बनाया रहेगा। ये जिसका भी कंपनी का एसी है, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, इसके इधर लिखा रहेगा बैच नंबर, मतलब ये साइड में येलो कलर का स्टिकर है ना, उसके ऊपर 100% लिखा रहेगा बैच नंबर। ये मॉडल के तीनों एसी एक साथ बने रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग, तो दे विल फॉलो विच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग के। एक ही बैच में तीनों एसी बनाए, तीनों में रॉ मटेरियल सेम लगा है, तो दे विल फॉलो विच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग में, जॉब कॉस्टिंग में कैसा है, मेरे लिए हर एक जॉब, इनफैक्ट वहां पे लोग बैच नंबर देते हैं, बैच नंबर, वो लोग ने बैच नंबर भी दिया रहेगा। ऑफ कोर्स वो नंबर उनको ही पता रहता है बैच नंबर, पर वो लोग बैच नंबर दे देंगे। वैसे ही जॉब के लिए भी हम क्या देंगे, जॉब नंबर। ये लोग ने जॉब नंबर दिया है, देखो व्हाट इज द जॉब नंबर दे हैव गिवन, जॉब नंबर W16, जॉब नंबर W17। ये जॉब किधर परफॉर्म होता है, जॉब इज परफॉर्म्ड इनसाइड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं, तो दीज जॉब्स वर परफॉर्म। वो जॉब परफॉर्म करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए, जो मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके पास से रिक्विजिशन करता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो लोग लिखेंगे ना MRN में कि भाई इतना 60 यूनिट्स चाहिए फॉर जॉब नंबर W16, सब डिटेल लिखना पड़ता है, क्योंकि वो एक कॉपी जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास, ताकि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वो हिसाब से मैं एंट्री पास करूं। एवरीथिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गया बिन कार्ड में हाथ डाला, जितना मांगता है रॉ मटेरियल उठा के जेब में लेके आया, बोला चलो अभी इसको यूज करो। एवरीथिंग हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल इश्यू MRN और वो बोलेंगे भाई जॉब W16 के लिए 60 यूनिट्स चाहिए, तो जॉब W16 के लिए 60 यूनिट्स इशू हुआ। वैसे ही जॉब W17, अच्छा हर एक जॉब के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सेम भी नहीं हो सकता। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा कौन से मटेरियल के लिए है, तो ऐसा 10 टाइप का मटेरियल रहेगा। तो W17 के लिए बोला हम लोग को ये चाहिए, W17 के लिए हमको मटेरियल X चाहिए, W16 के लिए हमको मटेरियल Y चाहिए, W18 के लिए। हर एक जॉब विल बी गिवन सेपरेट नंबर डिपेंडिंग अपॉन द वर्क टू बी डन। एनीवेज नाउ वो लोग क्या बोल रहे हैं, टैब्यूलेट द वैल्यूज एलोकेटेड टू जॉब W16 जॉब। क्योंकि क्या होगा मालूम है, ये जब तुम टैब्यूलेट करोगे, फॉर एग्जांपल FIFO मेथड, लेट अस से फॉर एग्जांपल में एक मेथड पकड़ के चलते हैं, FIFO मेथड में तुम जाओ, FIFO मेथड में जॉब W16 को जो मटेरियल्स इश्यू हुआ था वाज ऑफ व्हाट वैल्यू, वैल्यू प्राइस नहीं, वैल्यू 60 रुपीज ना। तो कल जाके जब जॉब W16 का कॉस्ट शीट बनेगा, उसके अंदर मटेरियल कंज्यूम में 60 आएगा। वैसे ही फॉर एग्जांपल FIFO मेथड, कंटिन्यू विथ FIFO मेथड, अगर हमने जॉब W17 का कॉस्ट शीट बनाया, अच्छा जॉब W16 का कॉस्ट शीट एंड जॉब W17 का कॉस्ट शीट साथ में बनाने का क्या अलग अलग, वाह है, तो क्या हुआ, अलग क्यों बनाने का,
कॉस्ट डिफरेंट होगा, दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग होगा। अरे कस्टमाइज केक बनाओगे तो सबका सेलिंग प्राइस सेम रखोगे? कोई भी थीम बनाओ 1000 रुपया। मोबाइल सर्विस सेंटर में जाओ, कोई भी कंप्लेंट हो 5000 रुपया, स्क्रीन खराब 5000 रुपया बुलाना फ्लैट, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब में प्राइस सेम है। अरे बेटे वो बैच में बना है, तो तुम बैच कॉस्ट शीट फॉलो करके बैच कॉस्ट शीट के पूरे बैच का कॉस्ट ढूंढोगे, पूरे बैच का कॉस्ट ढूंढ के नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो, तो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। अभी केक शॉप में जाओगे, उधर पेस्ट्रीज पड़ा है, एक ही टाइप का 10 पीस पड़ा है, तो 10 का 10 पीस का कॉस्ट सेम रहेगा ना, क्योंकि वो एक ही बैच में बना है। यस और एनीवेज, कमिंग बैक टू जॉब। जब मैं जॉब W17 का कॉस्ट शीट बनाएगा तो उसके अंदर मैं मटेरियल का कॉस्ट कितना लूं? 80। दैट इज इफ यू फॉलो FIFO। बट इफ यू हैड फॉलो LIFO तो W16 के जॉब कॉस्ट शीट में मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा? 120। एंड W17 में, लेकिन अगर तुमने वेटेड एवरेज फॉलो किया होता तो दोनों में 90। तो वो हमको ये टेबल में टैब्यूलेट करना है, ऐसा वो बोल रहा है। तो बनाओ ये टेबल। वी जस्ट हैव टू टैब्यूलेट। तो जो हम लोग ने 3 स्टोर्स लेजर बनाया उसमें से वी हैव टू जस्ट पिक अप द फिगर्स। बोलो W17 का व्हाट इज द वैल्यू एलोकेटेड फॉर W16 रादर। FIFO मेथड में पहले FIFO कंप्लीट करो 60, देन फॉर W16 60 है। बोलो W17 में कितना है? 80। एंड व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू? 160। इसका टोटल करो 60 प्लस 80 प्लस 160। 300। कैन यू टेल मी रिसीट्स के अमाउंट कॉलम का टोटल बोलो। रिसीट्स के अमाउंट कॉलम का टोटल 300। व्हाट इज ब्रेकअप ऑफ 300? 300 में से 140 इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इश्यूज का टोटल रहेगा 140 अमाउंट का, एंड बाकी का 160 इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। LIFO मेथड में हाउ मच इज W16 का वैल्यू? 120, 100, 80। इसका टोटल ऑल्सो हैज टू बी वेटेड एवरेज में 90, 90 एंड 120। टोटल इज 300। टोटल तो 300 होगा ना, रिसीट्स का टोटल 300 है। व्हाट इज टोटल ऑफ रिसीट्स का अमाउंट? चाहिए तो एक बार कर भी सकते हैं हम लोग। रिसीट्स का टोटल कितना है बताओ? 300। चाहिए तो कर दो। क्वांटिटी का भी टोटल करो, कितना है? 200। अमाउंट का टोटल 300। इश्यूज के क्वांटिटी का टोटल इज 120 एंड अमाउंट का टोटल इज 140। Can you tell me what is formula for raw materials consumed? Raw material consumed का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ये क्वेश्चन में 0 है। रिसीट्स 200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 80, तो 120 इश्यूज। वही अमाउंट में एप्लीकेबल है। 300 माइनस 160 तो 140 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल सकते हैं तुम लोग, या इश्यूज। ऐसे ही चाहिए तो तुम LIFO में भी टोटल कर सकते हैं, सिर्फ क्वांटिटी और अमाउंट का टोटल करना चाहिए रिसीट्स एंड इश्यूज का। तो यहाँ पे 200 रिसीट्स का तो टोटल सेम ही रहेगा, हर मेथड में टोटल विल बी सेम।
इश्यूज के अमाउंट का टोटल बोलो, इश्यूज का क्वांटिटी का टोटल भी सेम ही रहेगा 120 एंड इश्यूज का अमाउंट इज 220. लाइकवाइज वेटेड एवरेज इश्यूज रिसीट्स का तो सेम ही रहेगा 200 300, क्वांटिटी भी सेम ही रहेगा 120, बट हियर इट इज 180. Okay, now one more thing that we have to do in this question, they are saying discuss from different point of views. मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बोला है कंसिडर करने के लिए, और डिस्कस करो विच मेथड यू विल प्रेफर. तो तीन मेथड है तुम्हारे पास. विच आर द थ्री मेथड्स दैट यू हैव? FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज. सो डिस्कस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. तो दो पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे और उसमें बाद में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सा मेथड वी विल प्रेफर. फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन. कैन यू टेल मी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन इज हाईएस्ट अंडर विच मेथड एंड लोएस्ट अंडर विच मेथड? LIFO. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ राइजिंग प्राइजेस. दिस इज मंथ ऑफ व्हाट? राइजिंग प्राइजेस. कैसे पता चला दिस इज मंथ ऑफ राइजिंग प्राइजेस? ये मंथ में हमने दो ही परचेज किया. फर्स्ट परचेज इज डन ऑन Jan 1, सेकंड परचेज इज डन ऑन Jan 20, एंड Jan 1 को व्हाट वाज द प्राइस? 1 rupee, एंड Jan 20 को 2. सो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट इट इज मंथ ऑफ राइजिंग प्राइजेस. राइजिंग प्राइजेस में क्या होता है? इफ कंपनी फॉलोज FIFO मेथड, जो क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक में है दैट विल बी आउट ऑफ विच परचेज? ओल्डेस्ट के लेटेस्ट? लेटेस्ट परचेज. लेटेस्ट परचेज तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक में, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में जो क्वांटिटी है वो कॉस्टलियर क्वांटिटी है. दैट इज व्हाई क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इज हाई. यस और नो? LIFO में क्या होता है? LIFO में इट इज ऑपोजिट. कि LIFO में जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक में 80 ही है, लेकिन उसका वैल्यूएशन देखो. अगर तुम FIFO फॉलो करते हो तो वो 80 रुपीज 2 रुपीज वाला है जो तुमने लेटेस्ट परचेज किया उसमें से है. लेकिन LIFO में रादर 80, वही 80 है, बट ये 80 कौन सा वाला 80 है? ओल्डर वाला. तुमने कितने में परचेज किया था? 1. दैट वाज चीपर. तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अंडर LIFO क्या होएगा? मिनिमम. कब सबसे कम किस में आता है? LIFO. हाईएस्ट किस में आता है? FIFO. बरोबर है? ये हो गया फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज फ्रॉम द point of view of you can say materials that were issued to the jobs. See, materials कहां पे consume हो रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आई अंडरस्टैंड, बट किस में कंज्यूम हो रहा है? जॉब्स पे कंज्यूम हो रहा है. तुम जॉब्स परफॉर्म कर रहे हो. आई थिंक नाउ यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ जॉब. जॉब सिंपल है. जॉब मतलब तुम काम कर रहे हो, लेकिन वो जो काम कर रहे हो यू आर डूइंग दैट वर्क एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट. कस्टमर आके तुमको बोल देता है मेरे को ये ऐसा चाहिए. थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं जॉब का. टेलर. टेलर के पास जाएगा कोई तो बोलेगा मेरे को ये शर्ट ऐसा ही चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को ये पैंट ऐसा चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को सूट ऐसा चाहिए, मेरे को ब्लेजर ऐसा चाहिए, ऐसा मेरे को स्टिच करके दो. सो फॉर टेलर एवरी वर्क इज अ सेपरेट जॉब. इट इज नॉट सेम एज द प्रीवियस वन. तो मैं ये बोल रहा हूं, सपोज ये टेलर है, तो टेलर क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को जॉब मिला है, तो उसका नाम दिया, उसने नंबर दिया, जॉब W16 W17. अब सपोज टेलर FIFO फॉलो करता है, तो FIFO में W16 को मटेरियल्स जो उसने इश्यू किया है उसका वैल्यू इज 60 रुपीज W16 का, एंड W17 का वैल्यू इज 80 रुपीज. बट अगर वो LIFO फॉलो करता है, LIFO क्यों फॉलो करेगा? बोला कस्टमर लेटेस्ट ट्रेंड फैशन प्रेफर करता है, तो हम LIFO यूज करते हैं. जो लेटेस्ट रहता है वो कस्टमर प्रेफर करता है, तो उसके अंदर 120 एंड 100. So use of which method will result into higher profit? Use of which method will result into higher profit? Of course, it is at the time of rising prices. तो ये कौन से मेथड को, कोई भी एक जॉब का तुम एग्जांपल ले लो. सपोज फॉर एग्जांपल वी टेक जॉब W16. बोलो अगर हम FIFO मेथड फॉलो करते हैं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का वैल्यू कितना है?
60। वही अगर हम LIFO फॉलो करते हैं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का वैल्यू कितना है 120। So use of which method will result into higher profit and use of which method will result into lower profit? FIFO will result into higher profit, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम टू 60, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज कॉस्ट और इनकम कॉस्ट। अगर तुमने रॉ मटेरियल कंज्यूम का कॉस्ट 60 लिया और अगर तुमने रॉ मटेरियल कंज्यूम का कॉस्ट 120 लिया, किसमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा 60 में, क्योंकि वहां पे कॉस्ट 60 है खाली। तो यूज ऑफ FIFO will result into what? Higher profit. Use of LIFO will result into lower profit. बराबर है। तो ये हो गया डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। नाउ ये डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमको ये सजेस्ट करना है या डिस्कस करना है विच मेथड विल यू प्रेफर। सो विल यू प्रेफर FIFO, विल यू प्रेफर LIFO, या फिर और एक मेथड भी है तुम्हारे पास, दैट इज वेटेड एवरेज। सो विच इज बेटर मेथड टू फॉलो? इट इज ऑलवेज वेटेड एवरेज। Weighted average is so far the best method to follow because weighted average brings greater uniformity. Weighted average method क्या करता है? Weighted average methods है ना, वो fluctuations को even out कर देता है। It even outs the fluctuation. मेरे पास एक लॉट है वो 1 रुपए वाला है, दूसरा है वो 2 रुपए वाला है, तो I will follow which method to even out this fluctuation. See, on higher side it is 2 rupees, on lower side it is 1 rupee. But suppose for example बहुत प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है, 1 रुपया है, ऐसा सीधा 20 दिन में रॉ मटेरियल का भाव डबल हो गया, 1 का 2 रुपया हो गया, बट बीच में सपोज पीरियड में हो थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहेगा, 1 का 1.1 हुआ रहेगा, 1.15, 1.2, 1.5 ऐसा करके हुआ रहेगा। तो बेस्ट मेथड टू फॉलो इज व्हाट? वेटेड एवरेज। Very widely accepted. Given a choice, I would like to select which method? Weighted average. और ये सब डिस्कशन हमको लिखना पड़े तो 2 शब्द मैंने लिखे हैं, तो ये 2 शब्द कॉपी करो। ये 2 शब्द कॉपी करने के लिए तुम्हारे पास 6 मिनट है और बाद में 15 मिनट का ब्रेक, तो हम सीधा 21 मिनट्स के बाद मिलेंगे। रादर 5 मिनट है तुम्हारे पास, 3:10 हो गया।